પણ ખૂબ સરસ વાત કરી કે આ જિંદગીનો કંઈ ભરોસો નથી, ક્યારે ઉપરથી તેડું આવી જાય. અને કોઈ કવિએ સરસ મજાનું ભજન લખ્યું છે ને કે કાળ ઓચિંતો આવશે ક્યારે કોઈ ભરોસો નહીં, માટે રામ ભજી લે જીવ તો જાગી જાય. તો જાગવા માટેનો સમય આપણી પાસે ઘણો ઓછો હોય છે, પણ સૂવા માટેનો સમય આપણને ઘણો મળે છે. પણ એ સુસુપ્ત સમયમાંથી આપણે જેટલો સમય ભગવાનના ચરણમાં બેસીએ છીએ, જેટલો સમય આપણે કથામાં બેસીએ છીએ, એ આપણી સમાધિ છે. બાકી પછી તો જીવનની ઉપાધિઓની અંદર આપણે તાણાવાણાની અંદર ગોઠવાઈને બેઠા જ છીએ. એક પછી એક સામાજિક બંધનો, એક પછી એક આર્થિક બંધનો આવી જ રહ્યા છે. અને એ નિભાવતા નિભાવતા ક્યારે બચપનથી જવાની અને ક્યારે જવાનીથી આપણું ગઢપણ આવી જશે અને ક્યારે ઉપરવાળાનું તેડું પણ આવી જશે, કંઈ ખબર નથી પડતી. પણ જેટલું જીવન આપણે કથામાં વિતાવ્યું અને કથાના ક્ષણ છે ને, કોઈ કવિએ સરસ મજાનું લખ્યું કે જીવન જીને કે લીએ મિલે થે દિન ચાર, जीवन जीने के लिए दिन मिले थे दिन चार, 2 दिन बीत गए आरज़ू में और 2 दिन बीत गए इंतजार में. કંઈક મળશે એની આરઝુમાં 2 દિવસ નીકળી ગયા અને કંઈક મળી રહ્યું છે એના ઇંતજારમાં 2 દિવસ નીકળી ગયા. એમ આમ જીવનના આ 4 દિવસો કઈ રીતે નીકળી જશે ખબર નહીં પડે. ખાલી આપણે આપણો જ વિચાર કરીએ કે આપણે હમણાં નાના હતા, વિચાર કરતા હતા અરે અમે તો હમણાં નાના હતા ભાઈ, એવો ઘણાને વિચાર આવે અમે કેવડા હતા. આપણા બાળકોને જોઈને આપણે એમ કહેતા હશું ને, ઓ મારું હું બેટા તારા જેવડો હતો, આપણે એમ હું તારા જેવડો હતો, પણ હવે તારો સમય છે મારી પાસે એવો સમય નથી. એટલે અત્યારનો જે સમય છે એ ભગવાનના ચરણની અંદર આપણે એવા ખૂબ ઓછા ક્ષણો મળે છે કે વિતાવી શકીએ છીએ. તો આવો સુંદર મજાનો ક્ષણ અને સુંદર મજાનો આ સત્સંગનો સમય એટલે આ સુંદર મજાની કૃષ્ણ કથા અને પરજ્યા સમગ્ર સોશિયલ દ્વારા ભાઈઓ દ્વારા સુંદર મજાનું આજે આયોજન, પરજિયા પટણી સોની સોશિયલ ગ્રુપ દ્વારા થયેલું આ આયોજન, આ કૃષ્ણ કથાનું, કૃષ્ણની સમીપ જવાનું અને આપણા આ સનાતન સંસ્કૃતિને બચાવવા માટેનું, આપણી નેક્સ્ટ જનરેશન છે એને આ કૃષ્ણની સમીપ લઈ જવા માટેનું આ સુંદર મજાનું આયોજન અને એની અંદર આપ સૌની ઉપસ્થિતિ. તો ડૉક્ટર સાહેબની ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આગળની હવે જે કાર્યક્રમની રૂપરેખા છે એની અંદર આપણે આગળ વધીએ તો એમાં સુંદર મજાનો આપણે જે કથાનો એક રસ માણ્યો, હવે થોડો સાથે સાથે કૃષ્ણમય નૃત્યનો પણ આનંદ આપણે માણીએ. તો એ કૃષ્ણમય નૃત્યની અંદર આપણે જવા માટે હું અહીંયા વિનંતી કરીશ કે જે સુંદર મજાનું કૃષ્ણની સમક્ષ આપણે લઈ જઈ રહ્યા છે એવું શ્રી પંડિત જસરાજજીનું કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે એવું સુંદર મજાનું ક્લાસિકલ સાંસ્કૃતિક નૃત્ય લઈને આવી રહ્યા છે અમારા ઋત્વીબેન નથવાણી. તો ઋત્વીબેનને હું વિનંતી કરીશ કે આવી અને આપની કૃતિ અહીંયા પ્રસ્તુત કરો. કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ, કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ, નાસાગ્રે વર્મોક્તિકમ, નાસાગ્રે વર્મોક્તિકમ કરતલે વેણુકરે કંકણમ, કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ, સર્વાંગે હરિચંદનમ, સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલી, સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલી,
पटले वक्षस्थले कौस्तुभं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि 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 ये कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् વાહ ભાઈ વાહ, ખૂબ સરસ. ઋત્વીબેનની કૃતિ બાદ હવે આરવીબેન આપણી સમક્ષ આવી રહ્યા છે. देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज. देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज. मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी. मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी. बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया. तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज. लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे. भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला. तेरी भक्ति में नाचे सबका तातैया. श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. हे नाथ नारायण वासुदेवा. देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज. देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज. હેલો. અતિ સુંદર કૃતિ બાદ ફરી પાછા આપણે આપણા કાર્યક્રમ તરફ આગળ વધીએ એ પૂર્વે હું અહીંયા પધારેલા જે બધા જ મહાનુભાવો છે એની અંદર અત્રે પધાર્યા છે, જે હમણાં જ સ્ટેજની ઉપર પધાર્યા એવા અમારા બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી જયેશભાઈ ઉપાધ્યાય, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આપ અહીંયા પધાર્યા. સાથે આપણા ગુણવંતભાઈ ડેલાવાળા જેઓ પણ અહીંયા અત્યારે પધાર્યા છે, અને બીજા અનેક મહાનુભાવો છે, પણ અમને થોડી સમયની પાબંદી છે, એમને નીકળવું છે, એ માટે એવો વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન પરમ ભવદીય સંતોનું
બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની કૃતિ આપી અને તેઓ વિદાય થઈ રહ્યા છે, કારણ કે એમને થોડું બીજું કાર્ય છે એમનું, એટલે એમાં નીકળવાનું છે. તો આ બંને ભવદીય મહેમાનોનું અહીંયા શ્રી પરજીયા પટણી સોની સોશિયલ ગ્રુપ દ્વારા ખૂબ ખૂબ અભિવાદન અને સન્માન. અને આની સાથે અન્ય સહયોગી સંસ્થાઓ જેમાં શ્રી રઘુવંશી પરિવાર, સરગમ ક્લબ, શ્રી સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ, શ્રીજી ગૌશાળા, શ્રી બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, શ્રી સોની ભગવાનજી પરસોત્તમ વાયા પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, શ્રી સમસ્ત પરજીયા પટણી સોની જ્ઞાતિ મહામંડળ રાજકોટ, નથવાણી એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, વેરાવળ પાટણ પરજીયા પટણી સોની જ્ઞાતિ શ્રી વલ્લભાચાર્ય ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, સમસ્ત સોની સમાજ મહિલા સંગઠન, સમસ્ત સોની જ્ઞાતિ ભાવના મહિલા સંગઠન, શ્રી ગિરનારી સોની સમાજ, રાજકોટ ગોલ્ડ ડીલર એસોસિએશન, હાલારી શ્રીમાળી સોની સમાજ, ઝાલાવાડી શ્રીમાળી સોની સમાજ, મીનરાજ શૈક્ષણિક સ્કૂલ જુનાગઢ, મોટા અંબાજી આશ્રમ બોરીવલી પૂર્વ, શ્રી ગોવર્ધન ગૌશાળા, આ બધી જ સંસ્થાઓનો અત્રે શ્રી પરજીયા પટણી સોની સોશિયલ ગ્રુપ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યો છે. અને આ બંને દીકરીઓ કે જેમાં હમણાં આપણી સમક્ષ જેમણે સુંદર મજાની કૃતિ રજૂ કરી એવા ઋત્વીબેન અને સાથે આરવીબેન, એ બંને દીકરીઓને પરજીયા પટણી સોની સોશિયલ ગ્રુપ દ્વારા 501 રૂપિયા આપી અને આ સુંદર મજાના નૃત્યને તેઓ બિરદાવી રહ્યા છે. તો અત્યાર સુધી આપણે જેમને સાંભળી રહ્યા હતા એવા પરમ ભવદીય શ્રી રુચિર બાબાશ્રી કે જેમણે ભાગવતજીના સુંદર મજાના શ્લોકનું સુંદર વિવેચન કર્યું. નિગમ કલ્પતરુર ગલિતમ ફલમ સુખમુખાદ અમૃત દ્રવ સંયુતમ પીબતમ ભાગવતમ રસમાલયમ મોહરહો રસિકા ભૂમિ ભાવુકા. તો એમના સુંદર મજાના પ્રવચન તરફથી આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ શ્રી મહારાજ શ્રી જયરામદાસજી મહારાજના પ્રવચન તરફ. તો હું શ્રી જયરામદાસજી મહારાજને વિનંતી કરીશ કે આપણે જે શ્રીજી સંપ્રદાય તરફથી હવે ભગવાન શ્રી રામ સંપ્રદાય તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ, તો શ્રી જયરામદાસજી મહારાજને હું વિનંતી કરીશ કે આપના સુંદર મુખારવિંદથી સુંદર મજાના ભગવાન કૃષ્ણના ગુણગાન આપણે સૌ સાંભળીએ એવી અર્ધજી અને એવી વિનંતીની સાથે. અસ્તુ. શ્રી કમલનાથજી મહારાજ ને થોડું કાર્ય હોવાથી તેઓ એક ઇમરજન્સી કાર્યની હિસાબે તેઓ આપણી વચ્ચેથી રજા લઈ રહ્યા છે, કારણ કે તેમને અગત્યનું કાર્ય આવી ગયું છે. એ માટે તેઓ અત્યારે ઇમરજન્સીમાં જ આપણા તરફથી રજા લઈ રહ્યા છે અને આપણી વચ્ચેથી તેઓ વિદાય થઈ રહ્યા છે. ત્યારે હવે ફરી પાછા આપણે સન્માન અને અભિવાદનના કાર્યક્રમ બાદ તરત જ આગળ વધીશું અને પરમ વંદનીય સુશ્રી મહારાજ શ્રી જયરામદાસજી મહારાજના સુંદર વચનો દ્વારા આપણે આપણા મનને પવિત્ર કરશું, આ વાતાવરણને પવિત્ર કરીશું. કદાચ કોઈએ આપણે રાજકોટમાં એવું વ્યક્તિ નહીં હોય કે ત્રિમૂર્તિ બાલાજીના નામથી પરિચિત નહીં હોય, કારણ કે 150 ફૂટ રિંગ રોડ અને રૈયા ટેલિફોન એક્શનની પાસે ત્રિમૂર્તિ બાલાજી હનુમાનનું મંદિર છે અને ત્યાંના આપણા મહંત છે કે જાગૃત મંદિર છે. તમે આમ જાઓ તો તમને વાઇબ્રેશન થાય શરીરમાં, ખરેખર એમ થાય કે ના હનુમાનજી મહારાજ અહીંયા બિરાજમાન છે. અને શનિવારે આરતી તમે જો ન કરી હોય તો એકવાર ખરેખર ત્રિમૂર્તિ બાલાજી હનુમાનની આરતી કરવા માટે ખાસ જજો. ત્યાં જે આરતી થાય છે એનો ખરેખર એક અલગ જ નજારો હોય છે. તો એવા અમારા ત્રિમૂર્તિ બાલાજી હનુમાનજીના મહંત શ્રી દિનેશ મહારાજ, તેઓ પણ અહીંયા આપણા ભવદીય સંતોનું સ્વાગત કરી અને અહીંથી વિદાય લઈ રહ્યા છે. ત્યારે ફરી પાછું પરમ વંદનીય પૂજ્ય શ્રી જયરામદાસજી મહારાજને વિનંતી કરીશ કે આપના અમૂલ્ય વચનોનો લાવો આપને સૌને આપે એવી અરજી અને વિનંતીની સાથે. અસ્તુ. કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુમ. મંચસ્થ સર્વે પૂજ્ય ચરણ સન્મુખ સર્વે પૂજ્ય ચરણ વિપ્રવૃંદ ભૂદેવ સમસ્ત સનાતન ધર્મ પ્રેમી કૃષ્ણ રામ શિવ બધા પ્રેમી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ. ભારત ભૂમિ એમાં પણ ગુજરાત, એમાં સૌરાષ્ટ્ર, અહીંયા જેટલા ઉપસ્થિત મહાનુભાવો છે બધાએ અનેકો વાર શ્રી કૃષ્ણ કથાના શ્રવણ કર્યા હોય, અનેકો વાર સન્મુખ
કૃષ્ણ કથાના શ્રવણ કર્યા હોય, ટીવીમાં વાંચન કર્યા હોય, બધાને ખબર છે શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ છે ને એ સિકર્સના છે. સિકર્સ એટલે અન્વેષક, જિજ્ઞાસુના છે, નોટ ફોર બિલીવર્સ. અને કૃષ્ણ જે છે ને એ જાણવાનો વસ્તુ છે. શ્રી કૃષ્ણ બહુ મોટો વ્યક્તિત્વ છે, જેમ આકાશ છે, માપી નહીં શકીએ કૃષ્ણને. અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે અનેક વર્ષો સુધી એના સાથે રહેતા હતા. પણ જ્યારે કૃષ્ણ તત્વને જાણવાનો એને સમય મળ્યા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને બોલ્યા કે તું મારી આ ચર્મ ચક્ષુથી નથી જોઈ શકતા, એના માટે તને દિવ્ય ચક્ષુની જરૂરત છે. ભગવાનને અવતરણ શું માટે થાય છે? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત. पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी. तो धर्म की स्थापना भगवान श्री राम या श्री कृष्ण, कोई मंदिर उन्होंने नहीं बनाया था कि किसी मंदिर में स्थापना कर दिया और सबको धर्म मिलता चला जाए, सब वहां से बांट ले. ऐसा नहीं हुआ. और धर्म ऐसा भी नहीं है कि कभी उसकी हानि हो सकती है. हमेशा लोग कहते हैं कि धर्म की हानि होती है. धर्म की हानि नहीं होते, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव, हमारे विचार, उसमें कमियां आती है. धर्म तो यथावत है, क्योंकि धर्म जो है ईश्वर का विग्रह है. जो ईश्वर है, परमात्मा श्री कृष्ण है, राम है, शिव है, वो स्वयं धर्म है. तो धर्म में कभी कमी नहीं हो सकती है. धर्म के लिए जब हमारी बुद्धियां कम हो जाती है उस विराट स्वरूप के लिए, तो जितने भी मनीषी थे हमारे यहाँ, जितने भी मनीषी हुई है, उन्होंने अपने अपने विचारों को समाज में प्रस्तुत किया. ये एक मार्ग है जिससे हम ईश्वर तक जा सकते हैं. लेकिन धर्म की स्थापना, धर्म की ये जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता ही क्यों और किस तरह से हुई? भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, कहाँ हुआ? उनका जन्म हो रहा है कारागृह में. हम सब किसी न किसी कारागृह में ही फंसे हुए हैं. कोई भवसागर के, कोई संसारिक विचारों के उस भवसागर में ही पड़े हुए हैं. और हमारे समक्ष सारी चीजें हो रही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे. हमें पता है कि गलत हो रही है, लेकिन हम विवश है सब जानते हुए भी. वासुदेव जी और देवकी जी को पता था कि उनके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, और कर रहा है उसका अपने भाई, जो अपने लोग ही हैं. सोचिए कि धर्म कहाँ तक पतित हो गया है कि उसका खुद भाई जो है अपनी बहन को, पहले तो उत्साह हुआ, अपनी बहन की विदाई करेगा अपने हाथ से. जैसे आकाशवाणी है, उसके विचार बदल जाते हैं. हम सबके क्षणिक में विचार बदलते रहते हैं. जब हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है, जब उसकी बात आती है, तो हम सारे रिश्तों को भूल जाते हैं. हम भूल जाते हैं कि ये माँ है, बाप है, भाई है, ये बहन है, ये जमाई है, सारे चीज हम भूल जाते हैं. और यहाँ तक हो जाते हैं कि वो आदमी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने बहन के नवजात बच्चों को ही वो नष्ट करता है, उसे मार देता है. भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है और वहां से जब मथुरा जाते हैं, मथुरा में उन्होंने जन्म लेते ही भगवान है, उन्हें पता है कि वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि कंस का राज्य है. एक अहिष्णु जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के अंदर बच्चों के प्रति भी दया नहीं है, बड़े की तो बात ही अब छोड़ दो, क्योंकि
ये जगत है ना, जो जीव है, कोई ऐसा जीव नहीं है कि किसी को प्यारा नहीं लगता है। आदमी कुत्ता, घोड़ा, सुअर, किसी के भी बच्चे को देख करके एक बार हाथ घुमा देता है आदमी। इतना प्यारा बच्चा होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो निर्दोष होता है। उसका अंतरात्मा जो होता है बहुत पवित्र होता है, बहुत शुद्ध होता है। पवित्रा नाम हृदय पवित्रम, शुद्धा नाम हृदय शुद्धम, इतना पवित्र होता है। इसीलिए हमारे संप्रदायों में ज़्यादातर बाल कृष्ण की, बाल राम की, लला की ही पूजा होती है कि भगवान छोटे हैं, उनकी सेवा हो सकती है, क्योंकि वो निर्दोष है। जब बड़े होते हैं तो जैसे बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं, अपनी जिद करते नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी जब बड़े होते हैं तो गोकुल में छोटी सी बात बोल के आते हैं कि मैं परसों आ रहा हूँ, और चले गए। फिर 100 साल तक उन्हें पता ही नहीं चला कि गोकुल फिर जाना है, मथुरा को जाना है, वृंदावन बरसाने को जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जिस गोकुल में वो रहते हैं उनके बाबा के पास बहुत सारी संपत्तियां है, बहुत कुछ खाने पीने को है, ऐश्वर्य की हर चीज है। लेकिन कृष्ण भगवान आए क्यों है? धर्म की स्थापना के लिए। तो उन्होंने देखा गांव के लड़के जो है ना, उनके शरीर पे अच्छे वस्त्र नहीं है, उनके पाँव में जूतियां नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जब तक गोकुल में रहे उन्होंने अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। ये समता का भाव है। धर्म की स्थापना वहां से होती है। ऐसा नहीं कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हो धर्म की स्थापना हो जाए, कभी नहीं होने वाली। इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकालेंगे। श्री कृष्ण ने अपने आचरण से बताया। वो सबके घरों में गए तो उन्होंने क्या देखा कि कंस जो था, सबके घरों से उनकी संपत्ति क्या थी? दूध दही, वो सब कर में ले जाता था, सबके घर से ले जाता था। उनके बच्चे जो है, उनके अंदर अभी मेडिकल साइंस, अभी डॉक्टर आए थे, तो उनके बच्चों के अंदर सारे विटामिन्स की कमी थी, शरीर सूखे हुए थे, अच्छे भोजन नहीं मिलते थे। पहले गांव में पशुधन था और अच्छी खुराक मिलती थी बच्चों को, दूध, घी, मक्खन, दही, कुछ भी खाओ, लेकिन उन्हें मिलता नहीं था। मेहनत करते थे। जिस तरह से बहुत सारे गाय के सेवा करने वाले हैं, लेकिन कैसे होती है कि बच्चा मुंह थन तक गया, थोड़ा सा मुंह लगाया और खींच लेते हैं, फिर उसके दूध निकालते हैं। बेचारे के मुंह में थन लगा रहता है, माँ के आंखों में आंसू आती है, इधर दूध निकाला जाता है और हम कहते हैं कि गौ सेवा करते हैं। थोड़ा हार्श लगेगा आपको। भगवान ने देखा कि उनके घर के, उनके निवाले जो है भोजन, वहां तक भी कंस का हाथ पहुंच गया था। तो भगवान ने शुरू किया बचपन से, मटकी फोड़ माखन चोर, बच्चों को खिलाओ। हमारी चीज हमारे बच्चों को ही मिलना चाहिए, वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छे उनका शरीर पे रहेगा। फिर हमारे समाज में क्या थी? वर्ण व्यवस्था, और एक होती है बड़ा छोटा गंदा, सबके साथ भेदभाव। तो भगवान श्री कृष्ण सब बच्चों के साथ बाहर जाते थे और सब बच्चे कुछ ना कुछ अपने घर से लाते थे। कहीं भी भागवत में नहीं कहा गया कि कौन से बच्चे हैं। और बच्चे लाते थे तो हम कभी छुआछूत को बहुत मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने मिटाया। वो बच्चे अपने हाथ से, किसके घर के, अपने हाथ से खिलाते थे श्री कृष्ण को, और भगवान बड़े प्यार से खाते थे। जब वहां से मथुरा गए थे तो भगवान जब पहली बार अपने हाथ से मुंह में अपना निवाला डाला तो रोने लगे। तो बाबा ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो बोला मुझे खाना नहीं आ रहा है। बोला क्यों? बोला कि रात में मैया खिलाती थी और दिन में मेरे मित्र खिलाते, तो मुझे पता नहीं है खाने के लिए। तो बचपन जो है, बचपन आपका भेदभाव से मिटा रहता है, और श्री कृष्ण ने सारे भेदभाव मिटा दिए उन्होंने। वहां से आगे वो बढ़ते हैं। जब गोवर्धन जी की घटना होती है, गोवर्धन पूजा की होती है, तो नंद बाबा इतने सक्षम थे कि अकेले ही 56 भोग कर सकते थे, अकेले ही पूजा पाठ करा सकते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ईश्वर सबके है, सबके लिए सुलभ है। ऐसा नहीं है कि पैसे वालों के लिए है ईश्वर है, वो तो पैसे वाले के लिए टिकट होता है। वहां पर भगवान के सामने टिकट लो, 500 1000 रुपया का लाइन में खड़े हो जाओ। भगवान को तो भाव,
दुर्योधन के मेवा त्यागे शाक भी दुर्गर घाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान वो नहीं देखते हैं। जब गोवर्धन जी का हो गया तो सब पूछे कि हम क्या करेंगे? बोले जिसके घर से जो बनता है वो लेकर के आओ, वही भोग लगाएंगे। तो वहां पर भी उन्होंने भेदभाव को मिटाया, सारे भेदभाव को मिटाया। भगवान बचपन की बात सबसे बड़ी मुझे पर्सनली मुझे एक तकलीफ होती है महाराज जी, कि श्री कृष्ण को जिस तरह से समाज में हम प्रस्तुत करते हैं, कैसे कि इतना लालित्य, इतना माधुर्य। हमारे कृष्ण ऐसे नहीं है, वो एक बचपना है, लेकिन उसके बाद जो कृष्ण की जीवन काल है हम उसको भूल जाते हैं। सिर्फ बचपना की माखन चोर, मटकी फोर, चीरहणर, खाली यहीं तक हम घूम के कथाओं में रह जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का व्यक्तित्व हमने बहुत छोटा बना दिया। बहुत बड़े व्यक्तित्व है, उनको समझना, उनको जीना, मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो। 11 वर्ष तक की बच्चे रहती है, बहुत सारे भजन, बहुत सारे लालित्य, वहाँ तक ठीक है। दूसरी बात, जब हम किसी शास्त्र का अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक बात को समझना चाहिए कि जो कथाएं होती है सारे आश्रमों के लिए है, सारे वर्णों के लिए है। ब्रह्मचर्य के लिए भी कथा है, वहाँ गृहस्थ आश्रम के लिए भी कथा है, वानप्रस्थियों के लिए भी कथा है और सन्यास के लिए भी कथा है। अब आप जो गृहस्थ आश्रम है उसको सन्यास का ज्ञान दो, उचित नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम है उसको पलायनवाद का बोलो कि सब माया है, सब माया, तो हम यहाँ कैसे बैठते? ये लाइट वेट कहाँ से आती? तो जिस आश्रम की जो कथा है, जो उपदेश है, वही उसके लिए है। कोई अपने माँ बाप के साथ रहता है, कह दो कि सब मोह माया है, सब ढोंग है, सब छोड़ो, आत्मा परमात्मा की, पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। और ये हुआ है हजारों सालों से। हजारों सालों से पलायनवाद के चलते ही हमारे देश में इतने आक्रमण भी हुए हैं। हमारे शास्त्रों में फेरफार किया गया, बहुत गलत सारी मिलावटें की गई है, शास्त्रों को गलत तरह से लिख दिया गया, जिसका कोट आज भी लोग कर रहे हैं। तो कृष्ण का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। कृष्ण एक तरफ बांसुरी बजाते हैं तो एक तरफ चक्र लेके भी खड़े रहते हैं। कृष्ण किसी को नहीं छोड़ते। कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु मारा जाएगा, उन्हें सब पता है, वो ईश्वर है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो प्रकृति का नियम है, काल का नियम है, उसे मैं भी, मेरा ही बनाया हुआ नियम है, उसे नहीं। उन्हें सब पता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं देखते, क्योंकि उनकी बनाई हुई नियम है। आप कृष्ण को समझोगे तो सारी चीज। यही प्रश्न तो अर्जुन बीच में, एक तरफ कौरव सेना है, एक तरफ पांडु सेना है, बीच में खड़े हैं। हम सब जीवन के मझधार में खड़े हैं। एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी है, और बीच में ईश्वर खड़ा है। हम किसके साथ जाए? ईश्वर के साथ रहे या पीछे पलायन हो या मौत की तरफ हम जाए? तो उन्होंने कहा कि देखो सब कुछ मारे जा चुके हैं, सब मरने वाले, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, इससे आप भाग नहीं सकते हो। कितना भी आप कुछ कर लो, इससे भाग ही नहीं सकते हो, और अपने कर्म से भी बच नहीं सकते हो। तुम अपने कर्म से भी बच नहीं सकते हो। तो कृष्ण के व्यक्तित्व को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि कृष्ण के स्तर का होकर के जानना। आपके अंदर एक जिज्ञासु पना होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भक्त 4 तरह के होते हैं। आर्त, अब अर्थ है कि हम सब, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो दुखी नहीं है। संसार में सब दुखी है और सब सुखी भी है, क्योंकि दोनों का सब मिश्रण ही ये जगत बना हुआ है। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, सब सम्मिश्रण है। तो सबको कुछ ना कुछ वेदना है, सबको कुछ ना कुछ ईश्वर से कहना है। लेकिन कहता है कि भक्त की जो अर्थ है ना, वो अपने लिए नहीं है, वो जगत के कल्याण के लिए। वो अपने लिए नहीं सोचता, तभी वो भक्त बन सकता है। वो सबके कल्याण की भावना करता है। सर्वे सुखिन संतु सर्वे संतु निरामय। वो अपने लिए सोचता ही नहीं है, तब उसकी भक्ति उस ईश्वर तक पहुंचती है। लेकिन हम अपने बारे में सोचते हैं। मंदिर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो हम सोचेंगे हमारा कल्याण हो, भले बगल वाले का धंधा ना चले, हमारा धंधा अच्छा चले। ऐसा नहीं है।
वो भक्त सबके कल्याण की कामना करता है। फिर उसके मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों है, ये भेदभाव क्यों है? अगर दुख है तो दुख का कारण क्या है? किस तरह से संसार की जगत की नियति चल रही है? जब इस चीज को देखता है तो वो अर्थ की तरफ अग्रसर होता है। पहले वो वेदना संवेदना, उसके लिए याचना करता है, फिर जिज्ञासा मन में होती है इसको पूर्ति कैसे किया जाए, किसी के दुख को पूरा कैसे किया जाए। अर्थ का अर्थात ये नहीं है सिर्फ पैसे से अर्थ है, उसका समाधान क्या है। उसके समाधान के लिए आदमी पूरी जिंदगी अपने को लगा दे। हमारे मनुष्यों ने पूरी जिंदगी समाज को दिया ही है। कभी भी वो स्वयं के लिए कभी उनकी चिंता नहीं रही है। हमेशा ही उन्होंने इस समाज के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, सबके हित के लिए उन्होंने हमेशा विचारा और चिंतन किया। और जब आदमी इस तरह जिंदगी जीते रहता है तो उसकी सारी जो ये भौतिक आशाएं हैं, भौतिकता है, वो सब दिखता है कि विश्व रूप व्यापक भगवान है, सब कुछ वही हो जाता है। तब उसे प्रतीत होता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगतम जगत तेन त्यक्ते न भुंजिता। तब उसे एहसास होता है ये सब ईश्वर का ही बनाया हुआ है, हमारा कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। गीता जी के दूसरे अध्याय में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरण में हूं, आप जैसा कहें। सिर्फ इतनी बात के लिए श्री कृष्ण ने पूरे 18 अध्याय बोल दिया। एक बात के लिए अंत में वो बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज। उसको पहले ही कह देते कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास, इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं समझ में आएगा, वो प्रश्न के ऊपर प्रश्न, एक के बाद एक जिज्ञासाएं होते जाती है। जब सारी जिज्ञासाओं की शांत होती है तब कृष्ण के तत्व का भी पता चलता है कि वो कृष्ण है कौन। हम जो सोचते हैं कि वो कुंज कलियों में नाचने वाला कृष्ण नहीं है, उससे बहुत परे है वो बचपना। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि हमें राम या कृष्ण या शिव या देवी के बारे में जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वो गलत है। उनके ऐश्वर्य की, उनके जो जीवन की बाद की, उनके जो जीवन का है उनका, एक बात कृष्ण भगवान हो या राम हो, उन दोनों ने उपदेश नहीं दिया, जीवन को कर्म से बताया सबको कि कैसे जिंदगी जिया जाता है। वो रहते तो उपदेश दे के चले जाते, कृष्ण को भी बता देते मैं ही सब करता धरता हूं, तू युद्ध अंत समय तक उसके साथ रहे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध उपरांत हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान हो रहे थे, जैसे ही वो एक पैर रथ के ऊपर रखे चलने की तैयारी हो रही थी, उसी समय उत्तरा दौड़ते हुए आ रही है। देखिए, ईश्वर से थोड़ा भी हम दूर होते हैं ना, हमारे दुख के बादल छटते नहीं है। इसीलिए कुंती जी हमेशा दुख ही मांगती है कि कम से कम आपकी स्मरण बने रहेगी हमेशा ही। ये नहीं है कि वो दुख चाहती है, लेकिन कहती है कि एक ऐसा क्षण है कि तुम हमेशा याद है, तो मुझे हमेशा किस तरह याद आओगे। उत्तरा दौड़ते हुए आती है वहां से, वो एक अंतिम उनका वंशज वहां पर था। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय, देखिए, जब तक हम या ईश्वर सन्मुख है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशई तबे। जब तक हम सन्मुख है, जब तक हम सोचते हैं कि हमारी बागडोर ईश्वर के हाथों में है, जब तक हमें ये विश्वास है कि ईश्वर ही सब करता और धरता है, तब तक हम शांति से अपनी जिंदगी जीते हैं। जिस दिन हम विमुख होते हैं, जिस दिन लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैंपन होता है, तो आदमी धृतराष्ट्र बन जाता है। मामका पांडवाश्च, इस बुद्धि जो है ना धृतराष्ट्र है। बहुत आदमी आंख के है लेकिन अंधे है, बुद्धि से, भावनाओं से अंधे है। उन्हें लगता है मेरा और तेरा, मेरा बच्चा और तेरा बच्चा, वो सारे धृतराष्ट्र ही है। इसलिए उसको एक ही बोलने के लिए कहा गया, पूरा
भागवत में। बोला ज़्यादा बोलेगा तो और कुछ गड़बड़ करेगा। एक ही प्रश्न उससे पूछा गया, ज़्यादा प्रश्न नहीं हुआ, उससे ज़्यादा संजय ने बोल दिया। लेकिन कहा कि ऐसे व्यक्ति से चर्चा ही क्या करने का जिसे मेरा और तेरा वहाँ पर रहता है। लेकिन कहते हैं कि भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका हूँ, मेरे से कोई अछूता नहीं, मैं हर जगह सबके हूँ। लेकिन जो मेरी तरफ बढ़ता है, जो मेरी तरफ अग्रसर होता है, ईश्वर को सब गांव के लोगों ने समझ के रखे थे कि ये बालक है, यशोदा मैया का, लेकिन उनके कर्म तो बहुत बड़े थे। जन्म से ही उन्होंने क्या क्या किया था आप सबको पता है। लेकिन जब रास उत्सव होता है उस समय उनकी व्यापकता दिखती है। व्यापकता इसलिए दिखती है कि जितनी गोपियां थी, बहुत सारे तो उनको बंद कर दिया गया, अपने शरीर को छोड़ करके आत्म तत्व से बाहर आ गई थी, क्योंकि शरीर तो मिटना है, चैतन्य मिटता नहीं है। वो सब उनके पास आ गई, और सब पास आ गई तो भगवान श्री कृष्ण भी अनेक रूप रूपाय विष्णुवे परमेश्वर, अनेक रूप में एक ही जैसा सबके साथ हो गया। और अच्छा, और हमारी जो सोच है, हमारी जो समझी है, तो हमारी सोच है जो हमारे यहाँ रास होता है वो रास नहीं है, वो अलौकिक है, वो अद्भुत। वो तभी समझ में आता है जब हम कृष्ण होकर जीना चाहते हैं, जब हम अर्जुन होकर के उनके साथ संवाद करते हैं, जब उद्धव बनते हैं उनके साथ, जब हम उनके साथ सुदामा बनते हैं। भगवान ने कोई भी किसी के साथ नहीं रहा। राम में उन्होंने सत्ता लेकर के देखा कि क्या तकलीफ है, बोला कि नहीं चाहिए इस बार सत्ता, हम बाहर से ही काम करेंगे, बहुत तकलीफ है, बहुत जलील होना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने श्री कृष्ण पर आज भी मस्खरी करते हैं, हंसी मजाक उनको उड़ाते हैं कि उन्होंने इतनी शादियां कर ली, वो भाग के चले गए यहाँ से। क्या जरूरत है यहाँ से भाग के जाने के लिए, जरासंध से, काले वन से भाग के चले गए। मले इसीलिए आप कह रहे हो क्योंकि आपने कृष्ण को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। समाज में नारी शक्ति को सम्मान देना, हमेशा से ही कहा जाता है कि महिलाओं को भी समान अधिकार होता है, सिर्फ कहने की बात है, लेकिन कृष्ण ने दिया, सबको अधिकार दिया। इसलिए वो योगेश्वर है, इसलिए परम पूजनीय, इसलिए 16 कला के अवतार है, क्योंकि उसने वो 16,000 स्त्रियों को सम्मान दिया था जहां कहीं भी सम्मान के अधिकारी नहीं थे। ये सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। स्त्री के सम्मान की बात, उनकी रक्षा की बात, जब स्नान करती थी कुमारिकाएं तब भी उन्होंने रोका कि हे बच्चियों ऐसे मत कर। जब कृष्ण उस समय रोके थे कि तुम्हारे शरीर पे वस्त्र पूरे होने चाहिए, तो आज सोचो हमारी जो बहन बेटियां जैसे तैसे वस्त्र पहन के समाज में जाती है तो उनके साथ कितनी उनके साथ स्थिति खराब है। ये सोचना चाहिए कि 5000 साल पहले कृष्ण ने बताया, तो कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि उस समय कृष्ण ने स्त्रियों के सतीत्व के लिए, उसके सम्मान के लिए, आज तक बहुत आदमी मजाक उड़ाता है, बहुत आदमी कुछ भी बोल देते हैं। क्योंकि अब एक आदमी था, धूप बहुत तेज था, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो आदमी को गुस्सा आया तो क्या करता है, थूकता है। सूर्य के ऊपर थूका, उसके मुंह पे आके गिरा। आजकल बहुत लोग ऐसे ही हैं, श्री कृष्ण के चरित्रों पर, बलराम के चरित्रों पर ऐसे बोलते हैं, यानी कि थूकना और हमें मुंह पे गिरना। उनके व्यक्तित्व को, उनको समझना, उनको जानना, उनके स्तर तक जाना पड़ता है। जब उनके स्तर तक जाते हैं, जानत तुम ही हो जाए, उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं कि अंत समय जब उन्हें तीर लगा, वो आकर के क्षमा मांगता है तो हंसते हुए कहते कोई बात नहीं, हिसाब पूरा हो गया, कोई बात नहीं, उसे माफ कर देते हैं। लेकिन वही कृष्ण भी है, शिशुपाल का सिर छेद भी कर देते हैं, वही कृष्ण है। तो कब, कहाँ, किस परिस्थिति में आपको कैसी जिंदगी जीना है, जीवन नहीं है। देखिए पूजा पाठ सब अच्छी बात है, मंत्र जाप करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी जीने की कला अलग बात है, ध्यान रखिएगा, वो आपको आनी चाहिए। हर जगह कृष्ण आकर के द्रौपदी की चिरहरण नहीं बचाएंगे। या तो द्रौपदी मजबूत बने
या तो जो पांडव सिर झुका के बैठे हैं ना हमारे समाज में आज भी, उनको सिर उठा के रहना पड़ेगा। हर जगह कृष्ण नहीं आने वाले हैं। हर जगह बोलो कृष्ण आएंगे, भोजन की व्यवस्था करा दो तो कृष्ण आएंगे, लच्छा ग्रीस, ऐसा नहीं होने वाला है। कृष्ण सब जगह है, लेकिन आप क्या करोगे? जब श्री कृष्ण ही सब कुछ करेंगे तो आप क्या करने वाले हो? और हमें इसी तरह से बताया गया, ईश्वर भरोसे, ईश्वर भरोसे रहो। अरे ईश्वर भरोसे थोड़ी है, ईश्वर ने इतना शरीर दिया है, तुम्हें हर तरह से परिपूर्ण कर दिया है। यहाँ तक कि संतों ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और आप तो ईश्वर के अंश हो। अमृतस्य पुत्र कहा जाता है हमें, लेकिन हमारे कर्म, हमारे विचार तो देखो किसी तरह के नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को बहुत छोटी सी एक बात कही। हमारे यहाँ जितने भी भारत में सनातनी है, उनको कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। कोई इसे अपनाता है? नहीं मानता है, तुरंत बदल जाएगा। कभी उस धर्म में, कभी वहाँ, कभी वहाँ। अभी राम के यहाँ सिर पटकेगा, कुछ काम नहीं होगा तो हनुमान के यहाँ सिर पटकेगा, वहाँ नहीं है तो मजार पे जाके सिर पटकेगा, कहीं कुछ करेगा। एक जगह तो होके रहो ना। कृष्ण एक जगह होके रहो, एक जगह से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति होने वाली है। लेकिन हम भटकते रहते हैं, कृष्ण को भूल गए, गीता को भी भूल गए, फिर हम बैठ करके कृष्ण को सुनते हैं। क्या सुनकर करोगे तुम? उन्होंने कहा कृष्ण ने कि जो अगर तू ये समर जीतेगा, ये युद्ध जीतेगा, पूरे धरती का राज्य करेगा, और जो तू वीर गति को प्राप्त होता है तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग ये नहीं कि कोई और दुनिया नहीं है। जब तक ये धरती रहेगी तब तक तेरी यशोगान होते रहेंगे, तब तक तुझे याद करेंगे, तो प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। वही स्वर्ग है। स्वर्ग और कहीं नहीं है। स्वर्ग नर्क कहीं नहीं। यही हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि लोग नर्क जैसी जिंदगी भोग रहे हैं, स्वर्ग जैसी भी जिंदगी भोग रहे हैं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा अगर तू अपने धर्म के लिए, अपने लिए खड़ा रहेगा और उसमें तुझे वीरगति को प्राप्ति भी होती है, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और तू जीतेगा तो धरती का राज्य भोगेगा। तो हमें उस श्री कृष्ण ने, जिन्होंने एक बात के लिए समझाते समय जब अंत हो गया तो उन्होंने पूरे महाभारत की आयोजन पहले ही से था, हो गया। वही श्री कृष्ण यदुवंशियों को भी नहीं छोड़ा, अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा उन्होंने। श्री कृष्ण ने बोला गलत है तो गलत के साथ गलत, और अन्याय के साथ अन्याय देखना भी आदमी को जानना चाहिए। ये नहीं है कि वो हमारा है, गलत कर रहा है तो उसको करने दो। तो कहते हैं कि एक दुष्ट आत्मा रहेगा ना, इसीलिए वो जरासंध को छोड़ देते थे। भले दुष्ट आदमी है, जितनी बार जाएगा उतने दुष्ट लोगों को लाएगा, बार बार उसका मैं संहार करूंगा। एक गलत आदमी 1000 गलत आदमी को करते हैं। तो श्री कृष्ण जीवन जीने की एक कला है, जीवन का यथार्थ बोध है, लेकिन जीवन को और कृष्ण को समझना होगा। आप थोड़ा उनके साथ बैठो, उनको वांचन करो, गीता जी को पढ़ो, थोड़ा उसको पढ़ो, खाली श्रवण ही न करो, पढ़ो और देखो कि आप कहाँ खड़े हो। और इसीलिए अंत में जो उपदेश आए गौतम बुद्ध, उनसे पूछा गया, आनंद ने पूछा अंतिम समय में कि अपने सारी जिंदगी प्रवचन देते रहे, लोगों को इतनी याद नहीं रहेगी, कितने को पालन करेंगे, किस किस चीज़ को कहेंगे, ये करो ये करो ये करो। तो उन्होंने कहा कि आपके अंतिम एक उपदेश, तो उन्होंने कहा अपो दीपो भव। हर आदमी अपना कल्याण कर सकता है, कोई किसी का कल्याण नहीं करने वाला है। देखिए 5 भाइयों अंतिम समय जा रहे थे, धर्मराज के 5 भाइयों, और एक एक करके साथ छूटता चला गया। अंत में उनका धर्म जो स्वान था उसके साथ, उनके साथ गया। तो कोई किसी का साथ नहीं है, सब अब, यहां तक कि कृष्ण भी रुक्मिणी को छोड़ करके चले गए, साथ नहीं लेकर के गए। जब श्री कृष्ण साथ में नहीं लेके चले गए रुक्मिणी को, सत्यभामा को, किसी को, न भगवान श्री राम जानकी जी को साथ में लेके गए।
तो सोचिए कि यहाँ साथ जब तक हमें तभी तक है, क्षणिक है सबका जीवन, कोई भी पहले कोई भी बाद में जा सकता है, लेकिन जीवन ऐसा जीना चाहिए कि आदर्श बने। आप कम से कम अपनी नज़रों में श्रेष्ठ बनना सीखो, अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में श्रेष्ठ बनना सीखो। कोई दूसरा क्या कहता है नहीं, खुद को इतना पता होना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही रास्ते से जा रही हूँ। अगर स्त्री है तो उस स्त्री होने में गर्व होना चाहिए, खुद को कभी भी हीन भावना नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्त्री जाति से हूँ। स्त्रीण होना गर्व है, पूजनीय है। इसलिए हमारे संस्कृति में कन्या पूजन है, कुमारी का पूजन है। 5 वर्ष से अगर हम किसी कन्या की पूजा करते हैं और 12 वर्ष तक पूजा करते हैं, वो लड़की 20 वर्ष की भी हो जाएगी, 25 वर्ष के होने के बाद भी जब भी नज़र पड़ेगा वो हमारी पूज्य भाव ही रहेगा, क्योंकि हमने 500 साल उसके चरण पूजा किए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कुमारी का पूजन है। तो जिस सनातन परंपरा में, जिस वैदिक परंपरा में इस तरह से स्त्रियों को सम्मान मिलता था, उसे कहा जाता है कि स्त्रियों के सम्मान की बातें करो। तो स्त्री के खूबसूरती स्त्रीण होने में और पुरुष का है उसके पुरुषत्व में। हम क्या कर रहे हैं कि स्त्री को पुरुष बनाते जा रहे हैं। स्त्री, लड़कियों को खबर नहीं पड़ रहा है कि उसके अंदर जो बायोलॉजिकल हेरिडिटिकल उनकी जो है शरीर, वो पुरुष को नहीं स्वीकार कर सकती, और पुरुष जो है अब स्त्रीण बनना है। बहुत सारे कॉलेजों में DU JNU में वो मूछे दाढ़ी लेके साड़ी पहन करके नाच रहे हैं। बोले गजब क्या बात है भाई, भगवान ने तुम्हें पुरुष बनाया, तुम स्त्री बनने की कोशिश कर रहे हो, एकदम विरुद्ध ही कर रहे हो। तो स्त्री स्त्री बनकर है वो पूजनीय है, पुरुष पुरुष बनकर है अपने दायित्वों को समझे। कृष्ण ने खुल करके बताया है कि जिंदगी कैसे की जाती है, कैसे जी जाती है उसको। तो श्री कृष्ण हम सबके हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बहुत नज़दीक है, ऐसा नहीं है। आप सबके नज़दीक है श्री कृष्ण। ऐसा नहीं कि मैं आधा घंटा 2 घंटा पूजा कर लूँ तो मेरे ज़्यादा नज़दीक है। जिसने जिस तरह से भगवान को भजा उस तरह से पाया ईश्वर को। सबके करीब है, सबके प्यारे हैं। बस एक है कि एक कदम आगे बढ़ना सीखो, थोड़ा सा उनके साथ संवाद करना सीखो, उनकी बातों को थोड़ा बैठो और समझो, देखो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। भागने की जरूरत नहीं है। बोले कि ईश्वर को कहाँ ढूंढने जाओ, बोला तुम बैठ जाओ। बोले बैठ के क्या मिलेगा, बोला अपने अंदर ढूंढो, वहीं मिल जाएगा। बाहर कहाँ तक हम ढूंढेंगे। जैसे ईश्वर कृष्ण के बारे में आज जो प्रसंग है उनके बारे में कोई बात करना, जैसे सूरज को दीपक दिखाओ, इस महाकाश को घटाकाश दिखाओ, तो उनकी जो जीवन है, उन्होंने जब आकर इस धराधाम में जो किया है, अद्भुत व्यक्तित्व की कल्पना रहती है। और हर बचपन से लेकर के और अंत समय तक हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहना। रुक्मिणी जी बहुत बार शिकायत करती थी, आप विवाह करके लाए हो, मैंने अपने मंडप को छोड़ के भाग के आया, आप मुझे समय नहीं दे रहे हो। भगवान ने कहा ना, खाली विवाह ही मेरा काम नहीं है, मैं यहाँ पर और काम के लिए भी आया हूँ, आपको राज सिंहासन दे रहा हूँ। तो कभी कभी राज सिंहासन भी बड़ा दुखदाई होता है, सत्ता भी बहुत, यहाँ बहुत बड़े सत्ताधीशों के पता चलेगा कि पति उनको समय ही नहीं देता, बेचारी दुखी रहती है। तो माँ बाप बोलता है कि बहुत पैसे वाले लड़के से शादी कर दे, लड़का उसको समय नहीं देता, वो दुखी रोते रहती है, तुमसे शादी करके मैं दुखी हो गई। बोले क्यों? बोले तुम टाइम नहीं देते हो। बोले चल घूम के आते हैं, फिर 1 महीना गायब। तो रुक्मिणी जी को उस समय भी पीड़ा थी, यही पीड़ा थी कि तुम मुझे समय नहीं देते हो। भगवान राम के साथ भी पीड़ा था वही। तो भगवान कहते हैं साथ में रहो, परिवार की महत्ता आपको, परिवार को आप इंपॉर्टेंस दीजिए। जहाँ दादा दादी हो, माँ बाप हो, साथ में रहते हो, एक साथ भाई रहते हो। हमारा समाज टूटते जा रहा है, बिखरते जा रहा है, इसलिए कि हमारी जो परिवार की, संयुक्त परिवार की कल्पना थी वो खत्म होते जाता है। जिस परिवार में बच्चे अपने दादा दादी के संरक्षण में रहते हैं ना, उस परिवार का बच्चे का ग्रोथ अलग होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। आप उसको किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा दीजिए, लेकिन अगर परिवार का संरक्षण न मिलता है, बड़ों का उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण न मिलता है, उस बच्चे का व्यवहार है ना बहुत वियर्ड होगा, बहुत ही होगा, और माँ बाप बहुत दुखी रहेंगे।
तो परिवार मत तोड़ना सीखिए, परिवार को जोड़ना सीखिए। आदमी को लगता है कि मैं अकेले सुखी हो जाऊंगा, अकेले कोई सुखी नहीं होता है। भगवान भी जब अकेले होते हैं तो कहते हैं कि एको अहम बहुश्याम, मैं अनंत हो जाऊं और मैं रचना करूं। तो परिवार को जोड़ना सीखिए, सब साथ में रहे, सब मिलके रहे। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, कभी भी तोड़ना नहीं सिखाता है। हम टूट रहे हैं, सांस्कृतिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, हर तरह से हम टूट रहे हैं। इस चीज़ को बहुत बड़ी बीमारी हमारे समाज में, शायद कैंसर से भी और कोरोना से भी बड़ी बीमारी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दो, लेकिन उसे संस्कार और शिष्टाचार देते रहिए। भगवान राम के लिए कहते हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाव ही माथा। उन्हें शिक्षा, संस्कार और शिष्टाचार तीनों देते रहिए। आपका बच्चा बड़ा होकर के आपका बच्चा ही बना रहे, मशीन न बने। घर लौट के आए तो आपका बेटा और बेटी मिले। आपकी पुत्र वधू चाहिए या कमाने वाली कोई चाहिए? आदमी कहता है कि दोनों कमाए। अरे बोले बहुत खर्चा है, बेटा और बेटी दोनों कमाए, बहू कमाए तो बहुत अच्छा है। मैं बोला अरे बेटा में इतना हिम्मत हो कि कमा के खिला सके, बहू कमाएगी तो ही तुम्हारा खर्चा चलेगा। ऐसे नालायक से क्या शादी करने का कि जो बहू भी कमाए और घर चलाए। अरे पुत्र में, बेटे में, पति में इतनी ताकत हो कि उतना खर्चा, और पत्नी भी ऐसी हो जाए कि तू जैसे मुझे रखेगा मुझे रहना है। तब परिवार जुड़े रहते हैं। भगवान राम जब वन को जा रहे थे तो राम जी ने उनसे कहा कि देखो वहां बहुत तकलीफ है, कैसे रहोगी? बोले जैसे आप रहोगे वैसे रह लूंगी। तो बोले वहां राक्षस सब है। बोले आप हो ना, तो आप क्यों चिंता करते हो? तो भगवान बोले अरे बहुत सारे बड़े बड़े राक्षस होंगे, युद्ध होते रहेगा। बोले अच्छा तो तुम खाली शादी के लिए धनुष तोड़े थे, बस उतनी ही ताकत थी तुम्हारे अंदर। भगवान ने बोला ऐसी बात नहीं है। बोला बोले देखो मैं तुमको सही बात अभी बताती हूँ, तुम्हें पता नहीं है। जिस धनुष को तोड़ के तुम्हें घमंड हो रहा है ना, रोज मैं उठा करके सांवड़ी लगाती थी। तो मैं छत्राणी हूं, मैं युद्ध भी लड़ सकती हूं। तुम मुझे ऐसा मत समझ लो कि मैं कोमल पद जैसे हूं और इतनी नाजुक छत्राणी हूं मैं। तो भगवान राम चुप हो गए। फिर भगवान बोला कि तुम यहीं रहो। जानकी जी ने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, मेरी जो विवाह हुई है ना इस अयोध्या से नहीं हुई है। न कि मुझे बरबाला पहनाने के लिए राज सिंहासन आया था। ये दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, श्री राम आए थे मुझे बरबाला पहनाने के लिए। मुझे जिंदगी आपके साथ जुड़ी है। और वो पत्नी कैसे, जो पति के सुख में भी सुखी नहीं रहे और दुख में भी दुखी साथ न दे, कैसी पत्नी है? बोले कि आप मुझे सिखा रहे हो। अगर रात की बात होती तो मैं सुबह महारानी बन गई होती। सुबह रात में जो चर्चा हुआ तो सुबह महारानी बनती। और सुबह जब वनवासी आपको वनवास मिला तो हम वनवास से नहीं मिलती। हम भारतीय सनातनी कन्याएं हैं। जिंदगी के बाद भी LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हम छोड़ने वाले नहीं है तुम्हें, तुम भाग के जाओगे हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। हमारी स्त्रियों की गौरव थी, पति के उसकी सुरक्षा के लिए रहता था। तो कृष्ण भगवान भी अंतिम समय उनके साथ नहीं हो पाए। ये भी जीवन की एक हकीकत है कि सभी कोई साथ नहीं रहता है, लेकिन जब तक आप हो बहुत खुशी से। देखिए दुखी होने के अनेक कारण आपके पास है। दुख के कारण ही होते हैं ना। सुखी होने के लिए, आनंदित होने कोई कारण नहीं है। दुखी के कारण है अनेकों कारण आप गिना दोगे। पैर दुख हो रहा है, पैसे का है, बहू ने ऐसा बोला, सास ने ऐसा बोला, पति नहीं सुन रहा है, बहुत सारी बातें। सुखी होने के लिए कोई कारण नहीं। इसीलिए भगवान को कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय, हमेशा ही आनंदित रहते हैं। कुछ उनसे किसी से लेना देना ही नहीं है। तो कृष्ण हमारे जीवन के, हमारे संस्कृति के और पूरे वसुंधरा ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के प्राण स्रोत है। वो कण कण में समाया हुआ है। वो ऊर्जा स्रोत ऐसा है कि हम क्वांटम फिजिक्स को पढ़ने जाए
या फिजिक्स कोई जो बच्चे 10th 9th के 11th में पढ़ रहे हैं, जैसे एक एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है एक एटम के अंदर, उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु और महेश है। आप साइंस की तरह से जाओ या आप रिलीजियस पाथ की तरह से जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरह जाओ, तो वो जो एटम्स है हमारे शरीर में अनगिनत है। इस ब्रह्मांड में पूरा एटम ही चल रहा है और सब में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। वो हमारा श्री कृष्ण ये ऊर्जा का अनंत भंडार है। उसमें से सारे सृष्टियाँ उत्पन्न हुई हो, सारे जा रही है, सारे पैदा होते जा रही है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जो सबके ऊपर करुणा करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का हमें गर्व हो, हमें बोध हो और हमें वो प्रेरणा दे कि हम अपनी विरासत को न भूलें, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने स्वजनों को न भूलें। हम चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन हम जुड़े रहे। जिंदगी थोड़ा पीछे हट कर भी जियो, सिर्फ भागने से नहीं मिलता है। हम भागे जा रहे हैं, अंत समय में क्या भला भला कुछ मिला नहीं। देखो आप जो पैसा कमा रहे हो ना, उसको जीने के लिए भी समय दो। आदमी के पास बोलता है खाने के लिए टाइम नहीं है, तो बोले काहे को कमा रहे हो, खाने का टाइम नहीं है तो। बोला नींद नहीं आ रही, बोले कि क्यों दौड़ रहे हो। तो आप जिंदगी सीना सीखो, काटना मत सीखो। बोले कैसे कट रहा है, सबको काटी जा रहे भैया, जीना सीखो, काटना मत सीखो। तो भगवान की सबके ऊपर कृपा रहे। कृष्ण को जानने की चीज़ें थोड़ा जानना सीखो, थोड़ा उनके साथ बैठो, उनकी बातों के साथ रहो, थोड़ा भगवत के साथ बैठो, थोड़ा गीता जी के साथ आप बैठो, आपको पता चलेगा श्री कृष्ण हमारे जीवन में कितने इम्पोर्टेंस है। और आज की जो परिस्थिति है, वो यूक्रेन और रसिया वार हो या भारत का इंटरनल मैटर हो या ग्लोबल इकोनॉमिक का हो, कोई भी चीज़ है, श्री कृष्ण इज एवरीवेयर, एवरीवेयर इन एवरी सर्कमस्टेंसेज। क्योंकि वो ऐसा पूर्ण व्यक्तित्व है कि आप कहीं से भी निकाल नहीं सकते। एक पजल्स होते हैं ना, एक हटा दिए तो पूरा पजल बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण वैसे हैं। हमने छोटा बनाने की कोशिश की है, वैसे नहीं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारे मन वाणी से भी परे है। तो उनकी कृपा सबके रहे। फिर से पूज्य चरण हमारे साथ बैठे हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबको भी जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।